Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so in this video we are studying about social science and standard 6. Okay, uh, this is the first chapter of civics. Okay, chapter number 14, unity in diversity. So don't get confused. Okay, we learn chapter 1, 2, 3, 4 of history and chapter number 9 of geography, and then we are talking about chapter number 14. Okay, so this is the first chapter of civics. Okay, unity in diversity. Okay, so unity means togetherness. Okay, एकता. हिंदी में हम क्या कहेंगे? एकता. Okay, togetherness in diversity. Diversity means differences. Okay, differences are variations, मतलब different variations. Okay, so unity in diversity means togetherness. Differences are variations. Means you can say that the unity in diversity in Hindi, एकता विभिन्नता में एकता, मतलब डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्न जो है डिफरेंसेस है, और यूनिटी मीन एकता. सो एक विभिन्नता में एकता. ओके, सो इन दिस चैप्टर we are learned about unity in diversity as per as concern India. Our India is considered as a best nation, and in which field we have to unity in diversity. Okay, so that we have to what is the unity, what is in this chapter we will discuss about what is unity, what is diversity. Okay, so learn in this chapter. Okay, so first of all we learn about understanding of diversity. Okay, so understanding of diversity, what is diversity? Our country is a country of diversity. It has a unique identity, having diversity in religion, language, caste and economic equality. Okay, so I already told, even we can say differences, difference. Okay, so what type of the question is here, which type of difference we have? Okay, so we have difference in religion, language, caste and economic equality. Okay, so answer is that in India we have different religions like Sikh, Muslim, Hindu, Jainism, Buddhism, etc. And languages like Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada. Okay, so caste we have also different caste like OBC, General, SC, ST, etc. And economic equality. Okay, so in our country very rich people. Okay, so पुअर पीपल above poverty line, a APL बोलते हैं ना हम उनको, above poverty line and below poverty lines. So economic equality also have. So in our country is country of diversity, जहाँ पर बहुत सारे differences हैं. differences जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो different religions, difference in languages and difference in caste and difference in the economic equality also. Okay, so apart from the food, festival, custom, rituals and attires, variation is also seen in social life. Okay, so change in atmosphere, so foods and seasons, we have different foods. Okay, तो जब चेंज होता है, सीजन्स होते हैं चेंज, या फिर अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग फूड्स जो है लोग लाइक करते हैं. सो फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं, कस्टम्स. ओके, सो कस्टम्स भी अलग होते हैं, एंड रिचुअल्स रीति रिवाज, एंड अटायर्स मीन्स क्लॉथ्स, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी वेरिएशन है. क्यों? दोज हु आर लिविंग इन कोल्ड रीजन, जो ठंड के इलाके में रहते हैं, they have different clothes, and those who are living in a hot region, they have different clothes. So the diversity in the attires also. Okay, तो जो हम पहनते हैं, जो कपड़े हम डेली रूटीन में, उसमें भी differences है. Okay, so let us see what we can do for unity and equality in our country. So uh, we can
do, मतलब हम क्या कर सकते हैं? We can't see this type of unity and diversity in other part of world. Okay, so हम क्या कर सकते हैं? What we can do for unity and equality in our country? This diversity which is seen in Indians is rarely seen in other countries of world. Okay, so जो डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता हम किसमें देखते हैं? इंडियंस में देखते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो हम अदर कंट्रीज में भी देखें। जो वर्ल्ड्स में अदर कंट्रीज है वहां पर भी हमें ऐसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इंडिया हैज बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से, ओके, इस डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट्स जो है होता है। इन अवर कंट्री डाइवर्सिटी सीन in color, complexion, attire, religions, language, foods, etc. from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. Okay, so we have difference in color complexion. Okay, as per as attires, मतलब हमारे कपड़ों के साथ साथ कलर में भी complexions होता है. Okay, languages, foods. Okay, from the Kashmir to Kanyakumari. Okay, so in this figure you say this is the north, okay, and south part. तो नॉर्थ में क्या आता है? कश्मीर. ओके, कश्मीर. और जहां पर क्या है? कन्याकुमारी. और ईस्ट साइड पर क्या आएगा? गुजरात. एंड वेस्ट साइड पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश. ओके, सो मतलब कि ऑल द साइड, साउथ इंडियंस, ईस्ट जो गुजरात के लोग हैं, मतलब वहां पर से, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक कलर कम्प्लेक्शन. तो कलर कम्प्लेक्शंस क्यों है? क्योंकि जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है वहां के लोग कैसे होते हैं? वहां के लोग बहुत ज्यादा फेयर कलर होता है उनका, और जहां पर थोड़ा हॉट रहता है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है. इसीलिए मतलब कि कलर कम्प्लेक्शंस में भी हमें डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता जो है हम देखते हैं. कलर कम्प्लेक्शंस में भी हमें अटायर्स के साथ साथ हमारे फूड्स में, लैंग्वेजेस के साथ साथ हमारे कलर कम्प्लेक्शंस में भी हम विभिन्नता देखते हैं. ओके, नाउ we talk about a religion. Okay, people having faith in different religions live in our country. Okay, so people have faith means uh, faith mean आप कह सकते हैं कि श्रद्धा होना. ओके, सो फेथ इन डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन अवर कंट्री. जो इंडिया में रहते हैं, मतलब हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स में उनका फेथ है, उनकी श्रद्धा है. दे हैव फेथ इन डिफरेंट रिलीजन्स. ओके, so Hindu has faith in God and Muslim has faith in Allah. Okay, so जो different peoples हैं उनका different religions में faith है. तो people following various religions. ओके, तो जो लोग हैं वो बहुत सारे रिलीजन्स हमारे इंडिया में जो होते हैं, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियम and Jainism live together harmoniously in spite of religion's diversity. Okay, harmoniously means peacefully. शांति से रहते हैं वो. Okay, peacefully. So, in spite of religious diversity. Okay, so मतलब इतने सारे रिलीजन्स होने के बाद भी, इतने रिलीजन्स में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी दे लिव इन पीसफुली एंड वन नेशन. ओके, अच्छे से रहते हैं इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज. ओके, सो all the religions are given equal importance in our country with good intentions and can practice to follow their religion equally. So सब रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारी कंट्री में, एंड गुड विद गुड इंटेंशंस. ओके, एंड पीपल कैन प्रैक्टिस और फॉलो देयर रिलीजन इक्वली. ओके, सो इंडिया इज नोन एज ए सेक्युलरिज्म कंट्री. सेक्युलरिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म मीन्स इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि
सबको फ्रीडम होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी धर्म में मतलब अपना फेथ रख सकता है, उसको फ्रीडम है। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप हिंदू हैं तो आपको गॉड को ही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेक्युलरिज्म कंट्री है हमारा इंडिया। ओके, देन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, ओके, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, Malayam, Odia, and Konkani, etc. Language spoken in our country. Okay, so different language like Hindi. Hindi is our national language. Okay, and English जो language होती है वो international countries में use की जाती है, but official language भी है हमारी। क्या है? Official language. So Hindi is our national language and English is our ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड गुजराती, बंगाली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स में, रीजन्स में जो लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषा है। लेकिन बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग diversity in languages, various language has importance to maintain unity of our country. Okay, सो इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बाद भी मेंटेनेंस रहती है किसमें? यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। हमारी जो एकता है वो कभी भी उस एकता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सब लैंग्वेजेस को। ओके, दोज लिव इन गुजराती रीजन, दे स्पीक गुजरात। वी आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, सो दे स्पीक डोगरी, Urdu languages and Kashmiri language. Okay, so we are giving respect to all languages. मतलब हम सब languages को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं है। सब लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस वजह से क्या होता है? मेंटेनेंस रहती है किसमें? यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। देन कल्चर। Culture diversity is widely seen in our country due to difference in religions and languages. तो कल्चरल जो है वो डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। कल्चरल मीन्स मतलब एक पूरे ग्रुप का, मतलब होता है ना, एक आप कह सकते हो ग्रुप का पूरा कल्चर। तो वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट इट्स लैंग्वेज, बिकॉज हिंदू हैव डिफरेंट कल्चर एंड मुस्लिम्स हैव डिफरेंट कल्चर, है ना। तो मुस्लिम का अलग अलग कल्चर होता है, हमारा हिंदूज का मतलब अलग कल्चर होता है। तो इस वजह से लैंग्वेजेस एंड रिलीजन की वजह से हमें कल्चर में भी डाइवर्सिटीज जो है वो देखने को, विविधता जो है वो देखने को मिलती है। कल्चर डाइवर्सिटीज कैन इजली बी सीन इन वेरियस रीजन्स आर स्टेट्स। तो हमें जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो हम कहाँ देख सकते हैं? वेरियस रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में। ओके, तो कल्चर एक्टिविटीज हमें डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। People living in different part of country celebrates festivals like Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Ashtati, Duj and Muharram, Buddh Jayanti, Mahavir Jayanti, Onam, Pateti, Vaisakhi, etc. Together. Okay. Then after here the questions are here. The questions are here, and which is our main festival of India? Okay, so the answer is that Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Ashadi Duj, Moram, Buddh Jayanti, Mahavir Jayanti, Onam, Pateti, Baisakhi, etc. Are our main festival of India. Okay, so दिवाली, यू नो अबाउट दिवाली एंड होली। उत्तरायण का भी जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था इन जो चैप्टर नंबर 9 की द sun enter into मकर राशि, so it called another name of उत्तरायण is मकर संक्रांति। दशहरा जो कि नवरात्रि के 10 दिन के बाद दशहरा जो मनाया जाता है। शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद is the festival of Muslim, and Christmas is the festival of Christians. Ashadi Duj means Rath Jatra, and Muharram is again the festival of Muslim. Buddh Jayanti and Mahavir Jayanti is the Jainism, and Onam Patati is the
festival of Christmas and Vaisakhi is the festival of Hindu. Okay. So we celebrate this type of festivals in India. Okay. So people living in the different part of our country have expertise in different dance like Ras, Garba, Gujarat, Bhangra, Punjab. Okay. Kathak Uttar Pradesh, Kuchipudi Andhra Pradesh, and Kathapadi Kerala, Bharatanatyam Tamil Nadu, Bihu Asa Odissi Odisha, and Bhumar Rajasthan, etc. Okay, so this is the classical forms. Okay, you always remember the classical forms of different states. Okay, so we मतलब कि आपको ये जो गुजरात की जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो कौन सा है, रास और गरबा. एंड पंजाब का जो क्लासिकल फॉर्म डांस फॉर्म है बांगड़ा. उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक. ओके. एंड आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म इज कुचिपुड़ी. एंड Kerala's classical dance form is Kathakali, and Tamil Nadu's classical dance form is Bharatanatyam, and Assam's uh, classical dance form is Bihu, and Odisha's classic form is Odissi, and Rajasthan's classical dance form is Ghumar. Okay, तो ये आपको मतलब एक टेबल में भी ऐसे होता है ना, मैचिंग में भी आ सकता है कि आप अलग अलग जो डांस फॉर्म्स एक साइड पर होगा और दूसरी साइड्स पे एक कॉलम्स में स्टेट्स के नाम होंगे, तो आपको उसको ज्वाइंट करना है. तो आपको मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स का मतलब होना चाहिए. तो जो रिमेंबर these classical forms of different states. Okay, next one is along with diversities, there are also many variations in food, attires, residence, customs, and tradition, etc. India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, farming, forest, etc. Along with diversities, okay. So इतना सारा विभिन्नता होने के बाद there are also many variations in people's foods. तो अभी already discussed about the food and attires. Then residence. Okay, residence means कि जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग स्टेट्स में जो है वो एटमॉस्फेयर भी अलग अलग होता है, तो वहाँ के जो घर रहने के जो उनके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि कच्छ में आप देखोगे तो कच्छ में कैसा घर होते हैं, ड्राई ग्रास के घर बनाए गए होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बूंगा. क्या कहा जाता है उनको, बूंगा. ओके. सो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ पड़ती है वहाँ का रेजिडेंस अलग होता है. तो कस्टम और ट्रेडिशंस भी अलग होते हैं क्योंकि डाइवर्सिटीज क्यों होती है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स. तो ऑलरेडी वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 वी हैव डिफरेंट जोन्स ऑन अर्थ. ओके. सो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, ऐसी जोन्स है जहाँ पे एक्सेसिव हीट है, torrid zone, and the temperate zones, moderate heat and are cold, and frigid zones excessive cold. Okay, so in on अलग अलग जगह पर एटमॉस्फेयर अलग अलग है, तो वहाँ का जो खाना, वहाँ के जो रहने का तरीका और वहाँ के जो कपड़े होंगे, उनके क्लॉथ्स होंगे, तो वो भी डिफरेंट ही होंगे ना. Okay, so Indian culture, unity in diversity. Indian culture is one of the ancient culture of the world. Okay, ancient culture. Ancient means old. Okay, पुराना culture है. People of our country differ from one another in many ways, such as attire, food, residence, religions, language, custom, festivals. Yet there is emotional unity. Okay, so we have variations in attires, food, residence, religions, language, customs, festival. Still, we have unity in diversity. इतनी विविधता होने के बाद भी हमारे जो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब एकता है. ओके, यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ अवर कंट्री. ओके, सो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो मतलब
आता है, किस लिए, कि विच इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। तो आंसर क्या आएगा उसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, फॉर एग्जांपल आप झाड़ू का ले लीजिए, अगर उसके जो है वो अलग अलग तीला होगा, मतलब उसकी जो तीलियां होंगी वो अलग अलग होंगी, तो वो सफाई नहीं कर सकती, है ना। जब उसको हम अच्छे से रस्सी से उसको बांध देते हैं तो वो पूरे घर की सफाई करती है। तो यूनिटी जो है वो जरूरी होती है, एकता, है ना। तो नेक्स्ट वन, people of different religions, languages, caste, love and honor their country. Okay, and feeling of sacrifice and cooperation for their nation, it is called national unity. Okay, so here the definition of national unity. Definition क्या हुआ national unity का? People of different religions, languages, and caste love and honor their country, have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called unity. नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो किस में है, कि लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के होने के बाद भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करने के बाद, डिफरेंट कास्ट, लेकिन उनका लव और हॉनर जो है, रिस्पेक्ट जो और प्यार जो है वो अपनी कंट्रीज के लिए, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब अपनी जो, मतलब कह सकते हो सेक्रीफाइस होता है त्याग करना, एंड कॉपरेशन मतलब इंटरेक्टिंग टू ईच अदर्स, एंड फॉर देयर नेशन, नेशन के लिए मतलब आपस में कॉपरेट करना, उसे ही क्या कहा जाता है, नेशनल यूनिटी कहा जाता है। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड ऑकर्स बिकॉज ऑफ यूनिटी, नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता की वजह से क्या है, हमारे जो डेवलपमेंट हो रहा है, किस में, इकोनॉमिकली हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोशली, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फील्ड में भी हम नेशनल यूनिटी की वजह से ही क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। ओके, तो लोग जो हैं वो मेंटेन करते हैं क्या, पीस मतलब शांति, सिक्योरिटी अपने देश की, एंड प्रॉस्पेरिटी जो भी हमारी जो ग्लोरी है, मतलब हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है हमारी, उसके लिए भी डाइवर्सिटी मतलब इन स्टिल वी हैव unity in diversity. Okay, so that's why Radha, Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, we accept need of national unity. Okay, so राधा कृष्णन जो थे उन्होंने क्या कहा था, इफ वी वांट टू सरवाइव एज ए नेशन, बट ही से सरवाइव मतलब बने रहना, अगर हमें बने रहना है, नेशन को बनाए रखना, हमें अगर हम चाहते हैं कि हम बने रहें एज ए नेशन, राष्ट्र, तो वी हैव एक्सेप्ट टू नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमें क्या करना होगा, नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी होगी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल, द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। ओके, सो अभी हम जब बात करते हैं बिफोर इन ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके ना, बिफोर इंडिपेंडेंस और एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो देश को आज़ाद कराने के लिए कितने सारे जो थे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, अपनी देशभक्ति दिखाई थी, सेक्रीफाइसेस किए थे। तो यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज ए स्पेसिफिक स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। तो यूनिटी दिखाई थी, सबने एकता दिखाई थी, तभी तो अपने देश को आज़ाद करवाया था। तो वो एक देशभक्ति जो है वो हम देखते हैं अपने देश में। तो स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो स्पेशल जो फीचर है हमारी कंट्री का वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता जो है वही हमारी कंट्री का स्पेशल फीचर है। ओके, देन different caste, religion, custom, culture, language, etc. are integrated in India. Okay, so we have different caste, religion, custom, culture, languages, etc. are integrated in India. We already discussed about it. So since India has a diverse culture, it has been able to create in variety in culture. India has followed the principle of Vasudeva Kutumbakam,
the whole world is family. Okay, so डिफरेंट वैरायटीज होने की वजह से हमारा जो कल्चर है वो भी उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया जो है वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है. प्रिंसिपल्स मीन रूल्स. ओके, हियर द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल इज PRINCIPLE. तो प्रिंसिपल मीन्स रूल. ओके, एक रूल को फॉलो करता है. कौन सा रूल? वासुदेव कुटुंबा, मतलब होल्ड मीनिंग ऑफ दिस जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का जो संस्कृत वर्ड है इनका मीनिंग क्या है? द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, मतलब पूरा जो दुनिया है वो क्या है? हमारा घर है. ओके, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इंडियंस. ओके, एंड द प्रिंसिपल स्पेलिंग PRINCIPAL. Okay, so here the meaning of this principle is principle of school. Okay, तो मेन डिफरेंस मतलब इसमें PAL होगा तो प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, एंड PLE होगा तो प्रिंसिपल मीन्स रूल्स. ओके, इंडिया इज ट्रूथ एंड स्प्रेड ऑफ फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड. ओके, तो इंडिया इज ट्रूथ एंड स्प्रेड करती है किसका? फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, मतलब सबको एक बराबर रखना. इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर मीन्स मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपको कोई भी बॉन्डिंग नहीं है कि आप इसी धर्म को मान सकते हो. आपको फ्रीडम है. ओके, सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. यूनिटी इज डाइवर्सिटी इन यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर्स का यूनिक फीचर्स क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो इन अवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल. सो हम अपनी कंट्रीज में क्या देखते हैं? बहुत सारे रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल. ओके, people of India live in life of coexistences, and Indian peoples have developed and conserved their unique diversity. Okay, so जो लोग हैं वो एकता में रहते हैं, and people have developed, मतलब तरक्की भी कर रहे हैं, डिवेल्प भी कर रहे हैं, एंड कंजर्व भी कर रहे हैं, मतलब संजोकर भी रख रहे हैं किसको? दिस यूनिक डाइवर्सिटी. इस जो होता है ना, इस विभिन्नता को भी संभाल कर, मतलब कंजर्व करके रख रहे हैं. सो it is enough for today. Okay, we will continue this chapter in next video. I hope you understand. If you have any doubt, you ask me in your live session. Okay, so thank you. Have a nice day.